अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। What I'm going to focus on over here is us as healers, and when we are interacting with our patients and their families, so what could be our focus other than our medical expertise? Because a lot of time we feel there are gaps. So today in this introductory session, let us try to understand those gaps and then also make a plan for ourselves how we are going to be healers in the true sense. So this has to be beyond prescription, and we should not be healing just the disease but also the patient. We never have holistic approach, and especially with the super specialization, you would notice that everyone is thinking about their own speciality. किसी को अपने पेशेंट में सिर्फ दिल नज़र आता है, किसी को गुर्दे नज़र आते हैं, किसी को आँख नज़र आती है, और किसी को इसी तरह से कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट नज़र आता है. बट द रियलिटी इज़ के होलिस्टिक हीलिंग जब तक नहीं होती, आवर पेशेंट्स दे डोंट गेट बेटर, एंड दैट इज़ अ बिग गैप, बिकॉज उसके इम्पैक्ट्स भी वापस हम तक ही आते हैं. अगर आप नोटिस करेंगे कि the patient keep coming back and we are also frustrated that why this patient is not getting better. So what I want to do is focus on the mind shift from disease centered to patient centered care. I also want to bring in this awareness about emotional and spiritual dimensions of the disease, how we can equip ourselves with some practical tools of compassion and also faith-based practices, and also reconnect the medical practice with purpose, barakah, and akhirah. So here is my question to you. How many times have we treated a patient perfectly, yet they didn't heal? And sometimes patients come up to us with piles of different consultations. इसको भी दिखाया, इसको भी दिखाया, इसको भी दिखाया, और हमें भी पता है कि हमने घूम फिर के वही मेडिकेशन लिख देनी है, बिकॉज वी फील के द पेशेंट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, सिर्फ इस वजह से प्रॉब्लम है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट यही है. सो लैब्स नॉर्मल होते हैं, बट द पेशेंट इज़ स्टिल एंक्शियस. Successful surgery has been done, but the patient is still depressed, and medication can be optimized, but we are not looking into a lifestyle change. So we have to ask ourselves this question again: are we treating bodies, or are we missing the human being inside? Now basically, if we look at a lot of practitioners and the think tanks who are looking at the huge bulk of chronic ailments, और कितना बड़ा लोड इस वक्त पूरी दुनिया में आ चुका हुआ है उन डिजीज़ का, एंड वी आर नॉट एबल टू मैच उनको, कैसे हम न्यूट्रलाइज करें, कैसे उसको देखें. सो देर इज़ लिमिटेशन ऑफ द सिम्टम बेस्ड डिजीज़ मॉडल. करंट रियलिटी ये है कि वी आर ओनली फोकसिंग ऑन डायग्नोसिस, प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्चार्ज. What we are missing out is the emotional pain, the lifestyle triggers. There is spiritual emptiness. इन चीज़ों को हम बिल्कुल टारगेट नहीं करें. And the result is that chronic diseases are rising. There is non-compliance. Doctors have a burnout. Patients are not satisfied. So the key insight over here would be a prescription without connection often fails. And to actually understand this scenario, you have to change or reverse the roles. जब कभी आपको खुद पेशेंट बनना पड़ता है, तब आप देखें कि हमें कैसा लगता है. How do we find the typical terminology and body language of a doctor when we are interacting with them? किसके पास हम जाना चाहते हैं? Being professionals, जो ज़्यादा qualified होता है या जो हमारी बात को बहुत अच्छी तरह से सुनता है. That brings in the power of compassion and empathy. And there is an evidence-based insight that if you have empathy towards your patient, it improves
patient adherence, recovery rates, satisfaction, and even the pain perception. पेशेंट आपके पास बैठता है और उसको ऑटोमेटिकली लगता है कि मुझे आराम आ गया. Else, people go to best of the doctors, best of the facilities, and they still have complaints. They're not happy. वो ये कहते हैं कि हमें आराम नहीं आया. कभी कभी in your social circle, people ask you कि किस डॉक्टर को हम चेक कराएं. If you mention one of the best consultant, वो ये भी कह देते हैं कई दफ़ा कि नहीं डॉक्टर साहब, उनके पास इतनी लंबी लाइन है, डॉक्टर साहब के पास बात करने का टाइम नहीं है. वी डोंट वांट टू गो टू सच अ डॉक्टर. फीस भी इतनी दो, इतनी देर इंतज़ार भी करो, और डॉक्टर बात भी नहीं पूरी सुनता. सो दिस साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पेशेंट्स डोंट जस्ट आस्क what is my disease. They are also silently asking, am I safe? Does this doctor care? Is there any hope? Often when I'm sitting in my clinic, and especially when I'm looking at interaction between two different doctors, the interaction between a doctor and a patient, जब हम खुद कुछ कर रहे होते हैं शायद हमें समझ भी नहीं आती, हम भी वही गलतियां कर जाते हैं. But when I'm looking at a patient, the body language of the patient, lot of questions in the eyes of the patient, what an anxious look the attendant of the patient has, and how they are looking at the doctor as masiha. क्या बताएगा, कैसे हमें कंसोल करेगा, कितनी बातों पे वो हमें रीअश्योर करेगा. And the doctor is worried about just writing the prescription and moving on to the next patient. That is why we see that empathy is missed out, and there is a lot of dissatisfaction. So when empathy is missed out, patient becomes defensive, non-compliant, and there is a lot of doctor shopping. And doctor becomes detached, irritable, with a burnout, and there is cycle of disconnection. यानी हमें लगता है कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो फीस मिल गई, लेकिन आपकी अपनी प्रैक्टिस भी अच्छी नहीं रहती. You want to win the hearts of the patients, only then patients want to keep coming back to you. That brings us to this important point. If we understand the 4 dimensions of healing, now even these dimensions are expanding. The first dimension is biological. That is, obviously we have to diagnose whatever disease is there. We have to provide the right medication or any surgical procedure. ये तो हमारा काम है, ये तो हमने करना है, इसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते. But then there is also a psychological aspect, which is stress, anxiety and coping skills. इसमें भी हम बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं. हम क्या करते हैं, अगर पेशेंट हमें कुछ बहुत ज़्यादा बात बोलता है तो हम उसे कोई स्ट्रेस रिलीजिंग मेडिकेशन दे देते हैं, स्ट्रेस रिलीजिंग रिलेशनशिप नहीं बिल्ड करते. और दैट इज़ वाई देयर इज़ लॉट ऑफ मैल प्रैक्टिस इन दिस रिगार्ड. And then there is another third dimension, which is the social one. We have to look at the family dynamics, the environment, the relationships. Being pediatrician, my teacher, when I was doing my internship, he told us that whenever you have to counsel a mother, young mother, with a baby in her lap, make sure that the grandmother is also tagging along. जो उसकी सास हैं, दादी हैं, बिकॉज शी इज़ अ मेजर इन्फ्लुएंसर, और नानी हैं, उन दोनों को बुलाना है और उन दोनों के सामने बात करनी है. एंड यू ऑल्सो हैव टू चेक आउट कि उनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं अबाउट बेबी फीडिंग, अबाउट बेबी टेकिंग केयर प्रैक्टिसेस, एंड यू हैव टू गाइड देम, बिकॉज वो अकेली मदर कुछ नहीं कर सकेगी. टिल दिस डे आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर ऑलमोस्ट 30 years नाउ. इट होल्ड्स ट्रू कि अगर आपने आइसोलेशन में किसी को भी ट्रीट किया विदाउट लुकिंग इनटू द फैमिली डायनामिक्स, योर प्रैक्टिस फेल्स. द फोर्थ इंपॉर्टेंट डायमेंशन इज द स्पिरिचुअल डायमेंशन, विच इज़ ऑफन मिस्ड आउट. हम कहते हैं मौलवी तो नहीं है ना, हमारा तो ये काम नहीं है ना, बस हमने एक सुपरफिशियल सा रिमार्क ज़रूर दे देना है कि अल्लाह बेहतरी करेगा, अल्लाह पे भरोसा करें. बट द पर्पस, एज हीलर्स वी डोंट इवन अंडरस्टैंड आवर सेल्स. ये बीमारी क्यों होती है, ये बढ़ती क्यों है. समटाइम्स इट टेक्स अ वेरी अगली डिस्कोर्स, वो क्यों हो जाता है.
कभी कभी आप आईसीयू में हैं या आपका पेशेंट जो है वो कोलैप्स कर रहा है, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? यू सीम टू बी द बेस्ट डॉक्टर बट देयर वाज अ केस वेयर योर पेशेंट पास्ड अवे और उसके जो अटेंडेंट्स हैं वो आपका सर तोड़ना चाह रहे हैं। आप सोचते हैं कि मैं तो सबको अच्छी तरह मैनेज कर लेती हूँ। व्हाट हैपेंड ओवर हियर? तवक्कुल, अपना तवक्कुल अल्लाह पे और पेशेंट का तवक्कुल, it's missed out. And also the connection with Allah. It is so much important that if a doctor has connection with Allah, the kind of practice he or she will be going through. And the same impact is going to be on the patient. अगर patient का अल्लाह पे तवक्कुल होगा तो वो उस डॉक्टर को किस तरह देखेगा? There is a big paradigm shift which happens. As I said that typically these are the 4 dimensions of healing, but we also have 2 more now added which have an impact on the healing process. One of them is the social dimension, कि आप socially किस तरह से अपने interactions करते हैं और वो जो social environment होती है उसका भी एक impact होता है in the healing process. डॉक्टर की भी आपकी जो socialization है वो कैसी है और फिर पेशेंट जो हैं उनके लिए हम क्या कुछ सोचते हैं और क्या करते हैं और उनको कैसे गाइड करते हैं इस सोशल एनवायरनमेंट से डील करना। द 6th वन इज़ द प्रोफेशनल डायमेंशन, बिकॉज सम ऑफ द पीपल व्हेन दे आर वर्किंग एंड देन दे ऑल्सो हैव अ डिजीज प्रोसेस दैट दे आर स्ट्रगलिंग विद, तो उनको हम कैसे गाइड करते हैं। इन सूरह लुक़मान वर्स नंबर 20 अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً, and amply bestowed upon you his favors, both apparent and unapparent. हम इस बात को समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर इतनी नवाज़िशें की हुई हैं, अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की ब्लेसिंग्स इतनी हैं which are so apparent and sometimes they are not even apparent. Like अगर आपका पेशेंट आपके पास आता है with just pain, and that pain leads you to a diagnosis. Just recently, my son's very good friend's father, he was diagnosed with renal cell carcinoma with metastasis. पूरी बॉडी में फैल गया and the doctors have told him कि no need for any treatment, आप उनका बस वैसे ख्याल रखें. He did not have any symptoms. He went for some minor thing, some minor challenge, and then he thought कि डॉक्टर के एडवाइस पे एक दफ़ा सारे लैब्स करवा लूँ. And with those labs, the diagnosis was there. तो हमें नहीं पता होता कि अल्लाह ताला हमें किस किस चीज़ से बचा रहा है और कैसे कैसे हमें हेल्प कर रहा है. And even when the patient comes to you, sometimes panic driven, why this is happening, this is one of the important things that should be there with us. कि जब हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि sometimes a disease is also blessing in disguise. अगर आपको फीवर होगा तो वो भी कुछ इंडिकेट करेगा and this will help us diagnose and also treat you or your dear one. So Allah has blessed us with countless blessings. Some blessings are visible and some blessings are invisible. And all blessings are a sign of His mercy and His favor. हर blessing हमें यही सिखाती है कि अल्लाह का हम पे कोई एक ख़ास करम है. अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ भी दिया हुआ है वो हमारी भलाई के लिए है. What should be our attitude? क्योंकि ये अगर attitude आपका होगा, you will be living with this attitude, only then you will be able to transfer this attitude to your patient. ठीक? So the greatest blessings of Allah Almighty, इनमें क्या क्या हैं? सबसे पहली blessing होती है the blessing of Islam. If you can submit to Allah subhanahu wa ta'ala, if you can enjoy the beauty of deen, if you can also practice and enjoy the results with the practices of deen, इससे बड़ी blessing, इससे बड़ी नेमत नहीं है. हम देखते हैं कि people around the world, they are looking for, they are in search of the truth. Why am I even here? इस सवाल का जवाब हम ढूंढ रहे होते हैं. मेरी लाइफ
क्या है। आपको पता है नाउ वी हैव अ होल फील्ड, पीपल आर टेकिंग अप कोर्सेज इन लोगोथेरेपी. When first time I heard this name and I explored it, it says logotherapy is when you find out your purpose in life. And I was like, subhanallah, if you become Quran student, if you submit to Allah subhanahu wa ta'ala, you know the purpose of life. You are here to do ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala. You are here with not a separation of deen and dunya. You are here to live your life from day to night, according to your age, according to your standard, according to your education, just with a scanner of Quran and Sunnah. That's it. अपनी तालीम हासिल करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने सारे इश्यूज़ को मैनेज करें, हलाल एंटरटेनमेंट करें. बस हर काम को करते हुए आपने देखना है कि अल्लाह ताला ने हमें इसमें क्या बताया, क्या करना है. सो अब देखें कि जब पेशेंट हमारे सामने होता है और वो भी कंप्लेन कर रहा है, और एज अ डॉक्टर हम भी कई दफ़ा बहुत फ्रस्ट्रेटेड बैठे होते हैं. तो इन सारी सिचुएशन में सिर्फ ये सोचना कि इफ़ यू आर अ बिलीवर, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है. दूसरी बहुत बड़ी ब्लेसिंग जो अल्लाह ताला ने हमें दी है वो ये ज़िंदगी है, जिसकी हम वैल्यू नहीं करते हैं. हम कहते हैं मैं मर ही जाऊँ. हमें इसीलिए बिकॉज वी डोंट वैल्यू दिस ब्लेसिंग. So a lot of time when we are with the challenges, there is no resilience in us, and that is why people just want to take away their lives. आप देखें कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी जो हैं दे कमिट सुसाइड्स. मार्क्स नहीं आए, सुसाइड. सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, क्या हो गया मार्क्स नहीं आए, क्या हो गया अगर करियर में कोई चैलेंज आ गया, क्या हो गया अगर टीचर ने कोई बात कह दी. ये तब होता है जब हम स्पिरिचुअली वीक होते हैं, और तब होता है जब हम अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं करते. यानी दे विल ऑलवेज बी चैलेंजेस इन योर लाइफ, बट इफ यू अंडरस्टैंड कि दिस इज सच अ प्रेशियस लाइफ, सच अ प्रेशियस गिफ्ट दैट हैज़ बीन गिवन टू मी. और फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना ऑन बीइंग हेल्दी एवरी डे व्हेन वी कम अक्रॉस पेशेंट्स. तो क्या हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला शुक्र है मुझे ये बीमारी नहीं हुई, अल्लाह ताला आपने मुझे इन मसलों से बचा के रखा हुआ है. हाउ मच आई शुड बी ग्रेटफुल टू यू. या हम किसी न किसी बात पे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं. कभी हम कहते हैं लोड शेडिंग का मसला, कभी हम कहते हैं बिल्स का मसला, कभी हम कहते हैं सड़कों का मसला, कभी हम कुछ कभी कुछ. क्योंकि आप देखें कुरान में अल्लाह ताला ने हमें एक असूल दे दिया है, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम. अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे अल्लाह तुम्हारी ब्लेसिंग्स को बढ़ा देगा. यू रीड एनी बुक ऑन gratitude and they say that people who can recognize the blessings in their lives, तो blessings होती हैं वो हाईलाइट होती हैं, वो नज़र आनी शुरू हो जाती हैं. one blessing leads to another blessing, वो आपको दूसरी नज़र आती है, दूसरी को देखते हैं तीसरी नज़र आती है. बट when we are into ingratitude, हमें वो blessing ही नहीं नज़र आती. हम कहते हैं हाँ तो सब जिंदा हैं, मर ही जाएं तो बेहतर है. यानी सबसे बड़ी ब्लेसिंग इस्लाम का होना, दीन का होना, उसकी पहचान होना, उसकी प्रैक्टिसेस होना. फिर दूसरी इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग ज़िंदगी का होना, तीसरी इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग हेल्थ का होना, एंड देन द वेल बीइंग. ये नहीं है कि ठीक है सेहत है लेकिन वो जी मुझे क्योंकि डायबिटीज़ है तो मैं हर वक्त अपनी इंसुलिन और मेडिकेशन पे हूँ, मुझे फ़लाँ बीमारी है तो मैं उसको मल्टीपल, हमारे पास वो पिल फिलर्स होते हैं जिसमें हमने अपनी ढेर दवाइयाँ रखी हुई होती हैं और उसके साथ हम सस्टेन कर रहे हैं. तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपको बीमारी ना हो. हम डॉक्टर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि अगेन इफ़ वी हैव होलिस्टिक अप्रोच ऑफ हीलिंग, तो फिर हम क्या करेंगे,